یہ تھے جناب شجاع رضوی صاحب جو کافی اچھے انداز میں آپ کے سامنے موجود تھے. خوف ستم نسل امیہ نہیں کرتے تصویر، خوف ستم نسل امیہ نہیں کرتے تفسیر یہ نصرت کا رویہ نہیں کرتے کہ بازار ہو دربار ہو زندہ ہو یا گھر ہو آنسو کسی عالم میں تقیہ نہیں کرتے، آنسو کسی عالم میں تقیہ نہیں کرتے. نیچے حضرت اب آپ کے سامنے قیصر زیدی صاحب سامنے روبرو ہو رہے ہیں. ایک زوردار نعرہ سلوات سے آپ حضرات ان کا استقبال کریں. قیصر زیدی فیض آبادی صاحب آپ کے سامنے روبرو ہو رہے ہیں. تلاوت کا مزہ دیتا ہے علی کا نام، تلاوت کا مزہ دیتا ہے. مسیری جو ملے مولا کو خدا کہتا ہے، ارے جھوٹ ہوتا ہے مگر سچ کا مزہ دیتا ہے. علی کا نام تلاوت کا مزہ دیتا ہے. برکت سلوات. مسائل کو بند پیش کرنے جا رہا ہوں. عجیب حال میں فاطمہ کے دونوں پسر، مسائل کے بندے آپ کے حوالے بلائے جانے. عجیب حال میں فاطمہ کے دونوں پسر، مطلب بار پھر سے بول رہا ہوں آپ سامنے. عجیب حال میں فاطمہ کے دونوں پسر، ارے حسن کے تیر بدن میں، ارے حسن کے تیر بدن میں حسین تیروں پر. عجیب حال میں فاطمہ کے دونوں پسر. دونوں بھائی کے نام آپ کے سامنے ایک ساتھ پیش کر رہا ہوں. حسن کو دیکھا ہے قاسم نے اگلتے ہوئے، حسن کو دیکھا ہے قاسم نے اگلتے ہوئے. ارے سکینہ دیکھتی ہے باپ کو تہے خنجر. عجیب حال میں فاطمہ کے دونوں پسر. دونوں بھائی کے نام ایک ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ارے حسن کو دیکھ
فاطمہ کے دونوں کے سر پرسا دیجئے فاطمہ زہرا کو دونوں بیٹوں کا ارے نہ جانے دیکھے ہیں زینب نے کشت میں کیسے ارے نہ جانے دیکھے ہیں زینب نے کشت میں کیسے ارے جگر کے ٹکڑے حسن کے جگر کے ٹکڑے حسن کے کبھی حسین کا سر عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں کے سر ارے حسن نے جاتے ہوئے چومے بازو زینب کے حسن نے جاتے ہوئے چومے بازو زینب کے ارے حسین جاتے ہوئے چومتے رہے چادر عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں کے سر حسن کے بیٹے کے امت نے کر دیے ٹکڑے حسن کے بیٹے کے امت نے کر دیے ٹکڑے ارے حسین لاتے ہیں ٹکڑے حسین لاتے ہیں ٹکڑے وہ سارے چن چن کر عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں کے سر ادھر حسن کے جنازے پر پھولتی روگے ادھر حسن کے جنازے پر پھولتی روگے ادھر حسین کے لاشے ادھر حسین کے لاشے بے نظر ہے پتھر عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں کے سر عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں کے سر ارے حسن کے تیر بدن میں حسین تیروں پر عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں کے سر نعرہ صلوات یہ تھے جناب کیسر زینی صاحب جو کافی اچھے اشارات کے سامنے سماعت کر رہے تھے کہ مدح مولا میں عبادت کا مزہ آتا ہے مدح مولا میں عبادت کا مزہ آتا ہے شعر پڑھتا ہوں تلاوت کا مزہ آتا ہے کہ مدح مولا میں عبادت کا مزہ آتا ہے شعر پڑھتا ہوں تلاوت کا مزہ آتا ہے ہم تیری یاد میں جاگے تو تہجد کا ثواب سو رہے تو شب ہجرت کا مزہ آتا ہے یہ جیسے تیری باتیں بھی عجب باتیں ہیں جھوٹ ہے پھر بھی حقیقت کا مزہ آتا ہے لیجیے حضرات اب آپ کے سامنے علی احمد صاحب پیشوانی کے فرائض کو جام میرے ہماری فہرست کے آخری شعرا ہے آپ حضرات کے سامنے روبرو ہوتے ہیں زوردار نعرے سلوات سے فیض اقبال کریں آپ حضرات
दुश्मन
रखबा क्या से क्या। और ये शेर मुलाजा फरमाएंगे, बंदगी की सेहदी वहदानियत से बंदगी की सेहद वहदानियत से मिल गई। घर तो है अल्लाह का बेटा से क्या कर दिया कुर्बान बेटों को भतीजों के लिए, कर दिया कुर्बान बेटों को भतीजों के लिए। दिल है ज़ैनबी का मगर जज्बा क्या कहूँ कुदरती से क्या। और आखिरी शेर मुलाजा फरमा ले, चाहता हूँ कि सब समाप्त फरमा ले शेर को कि ऐ अबू सुफियान कर बला में देख ले। ऐ अबू सुफियान कर बला में देख ले। हुर्मुला तेरा है शशमा से क्या रिश्ता जालिमे का है। घर तो है अल्लाह का बेटा जालिमे का है।
جیسے جیسے بندگی کے مراحل اتباع رسول آج کے موقع پر آج کے زمانے میں سب سے بڑا مرحلہ یہ ہے کہ ہم نبی کے بارے میں نبی کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، کس قدر جانتے ہیں، یہ ہم کو بہتر جانتے ہیں۔ کیا کہیں، کہیں تماشا بن رہا ہے پیغمبر کے نام کا، کہیں کوئی جملہ کہہ رہا ہے پیغمبر کے نام کا، کہیں ڈائنمارک کا کارٹون بن رہا ہے۔ اس میں غلطی کس کی؟ کارٹون بنانے والوں کی، فرانس کے پریزیڈنٹ کی، یا کچھ سابق کے علماء جنہوں نے کچھ ایسا لکھا دیکھیے آخر کیا ایسا ہے، ذرا اپنی بات کو سمجھیے گا پھر مجلس آسان ہے۔ کیا ایسا ہو گیا کہ آج جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے اسے نبی سمجھا رہا ہے؟ آخر کیا ایسا سوال آ گیا؟ کون ایسی مصیبت جس کا کلمہ پڑھے بغیر ہم مسلمان نہیں ہوتے، ایمان کے کھانے میں گنتے گنے نہیں جاتے، اسی نبی کے بارے میں ابھی منبر سے، داعش سے، پلیٹ فارم سے، بڑے بڑے جگہوں سے سمجھانا پڑ رہا ہے میرا نبی؟ اچھا سمجھایا بھی اپنے گراف سے جا رہا ہے، بال ایسے تھے، آنکھیں ایسی تھی، لبھائے مبارک ایسے تھے، اب تو حال ایسا تھا، اور میں کہتا ہوں بال تک جب آ گئے تھے ایک قدم آگے بڑھ کے بال بھی چلے جاتے۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، پیغمبر اس وقت تک سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا کہ جب تک آلے پیغمبر کا سہارا نہ لیا جائے۔ یہ جملہ کہوں گا، یہ جملہ کہوں گا، آپ دیکھیں سچ جو ہوتا ہے وہ چھپائے نہیں چھپتا، اور جھوٹ کی عمر نہیں ہوتی، یہ بھی ایسی بات ہے، جھوٹ کی عمر نہیں ہوتی، سچ چھپائے نہیں چھپتا۔ ولی اللہ محدث دہلوی جن کا پورا نام عبدالحق محدث دہلوی ہے، بڑی حسین بات کہی ہے۔ دیکھیے 2 مہینہ 8 دن کی عزاداری گزار کے بیٹھی، لہذا اور یہ وہ عزادار ہیں کہ جن کے پاس
फर्श आज़ा की दौलत है। तो जुमला साया नहीं जाना चाहिए। वो कहते हैं कि जब जो है वो उनकी रवायत है, मैंने जो जुमला कहा ना, एक तरफ ये कि पैगंबर उम्मी, अल्लाह अकबर, कैसे हम बर्दाश्त करें, कैसे हम बर्दाश्त करें, लफ्ज जबान से अदा होता है तो अजीब कहते हैं। तो मुझे कोई जाहिल कहते लाख अखलाक का मुरक्का बन करके हो, मगर तड़प तो अंदर से जाऊँ मैं किसी एक को आप बता दीजिए जिसको मैं कह दूं जाहिल हूं, वो अपने शराफत नफ्सी में कुछ ना बोले मगर दिल पर चोट कर जाए। और वो पैगंबर की जिसकी जबान चूस के अली जैसा शाहजादा जवान हुआ और झूठा दूध पी के अबू हुरैरा हरी हरी हदीसें लिखने लगे, वो रसूल उम्मी हो गया। अब इस जुमले की जो पैमाइश की है ना, तो ये बौना लफ्ज लगता। क्यों? बात से बात को काटती है। एक रवायत है अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की, नोट कर लीजिए ज़हन में ना, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अहले सुन्नत वल जमात के बुजुर्ग आलिम हैं। इन्होंने अपनी किताब में पैगंबर के चैप्टर में ये बात लिखी कि जब अली मुर्तज़ा की विलादत हुई, ऐसा जुमला ज़ाया नहीं जाना चाहिए, अली मुर्तज़ा की विलादत हुई, तो जब अली मुर्तज़ा की विलादत हुई और मातरे अली खाने काबा से अली को लेके बाहर आई, अली को लेके खाने काबा से बाहर आई ना, तो रिसालत इस्तेमाल के लिए गई थी। यहाँ पर हम बड़े सुकून से सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, देख रहे थे तारीख के झरोखे से झांक के कि ये हो गया। अली मुर्तज़ा की विलादत खाने काबा में हुई, मादर मुर्तज़ा उनको लेके बाहर आई, तो पैगंबर इस्तेमाल के लिए गए। अब दस्ते रिसालत पर अली मुर्तज़ा आए, उनकी रवायत है, अभी मैं अपनी आंखें नहीं पढ़ रहा हूं। दस्ते रिसालत पर अली मुर्तज़ा, फिर क्या हुआ? अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते कि जैसे ही रहले रिसालत पर कुरान नातिक आया ना, अब ये तो जुमला हमारा है, रहले रिसालत पर कुरान नातिक आया तो ज़बूर, तौरात, इंजील, कुरान की तिलावत हुई। ये आप सब ने भी सुन रखा है, उन्होंने भी लिख दिया। मैं सिर्फ मिल्लत मुस्लिमा से ये सवाल करता हूं यहां पर कि आप थे, मैं था, कोई भी था, तो फिर ये किसने बताया कि यहां तक ज़बूर पढ़ी गई, अब तौरात की तिलावत हो रही है, अब इंजील पढ़ी जा रही है, अब कुरान पढ़ा जा रहा है, ये ज़बूर का चैप्टर क्लोज हो गया, ये इंजील की तिलावत, वो तौरात की तिलावत, ये कुरान की तिलावत, तो कहा हम नहीं थे, तुम नहीं थे, कोई नहीं था, कहा फिर किसने बताया, कहा नबी ने बताया, तो कहा बात साबित हो गई। जो डिसीजन लेके ये बताए कि ये यहाँ तक ज़बूर पढ़ी गई, इंजील पढ़ी गई, तौरात पढ़ी गई, वो नबी होगा, तुम्हारा उम्मी बनाया हुआ नहीं होगा। शरफ याज़ादारी से मुशर्रफ होने वाले तमाम अज़ादा, मैं खिताब कर रहा हूँ। देखिए इस वादी में अगर वाकई नियत करके सच्चे दिल से आदमी भीख मांगे ना तो मिलता है। काहे के लिए? सिर्फ बीमार कोई शिफा नहीं मिलती। आप अपने इल्म के लिए भीख मांगे। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि स्टडी करने से पहले वज़ू कर लिया करो। वज़ू करने के बाद अगर तुम्हें ये लगता है ना कि मैं याद करूंगा, या पहले के मरहले में किताब खोला फिर थोड़ा टेक लगाया फिर लेट कर सो, या कोई चीज याद नहीं, तो मैं कहता हूँ वज़ू कर लिया करो, फिर अहले बैत का नामे नामी और इसमें गिरामी व्यक्त कर लिया करो। कुछ नहीं कर सकते, सलवात तो जानते हो ना, तो भीख मांगो तो मिलता है, और इनके दर का भीख मांगना। अब मैं जुमला
جناب سید سجاد نے اپنی پھوپھی جناب زینب کے لیے ایک جملہ کہا ہے جو آپ کو چوتھے امام کی عزاداری میں سننے کو ملتا ہوگا یا محرم میں. وہ کیا؟ انتے عالمۃ غیر معلمہ. اے میری پھوپھی آپ وہ عالمہ ہیں کہ جس کا کوئی معلم نہیں. آپ انصاف سے بتائیے کہ اگر امام ایک جملے میں ایک ہی معنی ہو، ایک جملے میں اصل ہے بزرگوار ہیں، آپ کو بھائی اہل عزاداری کا تجربہ کرنا چاہیے، لیکن ان کے گھر کا مزاج یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر نے مجھے ایک چیپٹر بتایا، مینس ایک بات، پیغمبر نے مجھے ایک بات بتایا، میں نے اس سے 1000 بات نکالا. یعنی کیا مطلب ہے؟ علی اپنا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، یہ تبلیغی ہے کہ آپ کے دو ناموں میں اپنی فضیلت بیان کر دی نہ. جس کا قصیدہ خدا پڑھ رہا ہو، فرض تھا پیغمبر اکرم پڑھ رہے ہو، عرش و فرش کے بیچ میں بیٹھ کر رہ جائے لہذا جبرائیل پڑھ رہے ہو. سناٹا تھا نا. میرے پاس میری اپنی دلیلیں ہیں، ان دلیلوں کو اگر کوئی بزرگوار رد کر دے تو میں اگر دلیل کے ساتھ تو میں شرافت سے قبول کروں.
एहसान मांगती। तो फिर जब यही आपने कहा तो ये आपकी शराफत इस्लामी तो हो सकती है कि भाई आप उनका एहसान मानते दूध पिला दे, ठीक है आपकी बात से, मगर जो दूध पिलाए उसका झूम झूम के कसीदा पढ़िए और जो नबी को दुनिया में लाए, ये भाई कौन है जो इनकार करते? अगर कोई बच्चा टीनेज का थोड़ा सा उससे आगे बढ़ गया, 20-25 बरस का हो गया, अब आप उसको देखें, उसकी ग्रोथ है, उसकी स्पीड है, उसके अंदर पढ़ाई की सलाहियत, उसके अंदर जवाब की सलाहियत, उसके अंदर मुआशरे में जीने की कैफियत, सबसे मिलना जुलना, अच्छे से रहना, ये वो सारी चीजें बहुत अपडेट होती हैं। तो आप क्या कहते हैं, माँ बाप ने कौन सी नेकी की थी ऐसा बेटा ऐसा की था? आप बताइए होता है नहीं? ऐसा जुमला ज़ाया नहीं जाना चाहिए। अगर कोई भी बच्चा समाज में एवरेज से आगे बढ़े और तरक्की की तरफ गामजन हो तो फिर समाज ये कहता है कि देखो आपके माँ बाप की कोई नेकी होगी जो ऐसा अच्छा बच्चा मिला। यही होता है ना? तो कोई भी बच्चा अगर सलीम तबाह हो तो माँ बाप के कसीदे होते हैं। तो फिर सोचो ना कि आमिना का मेयार किस मंजिल पर हो रहा है। पूरी दुनिया में आमिना किया होश तलाश किया अपने हबीब को पालने के लिए। और यकीन करें कि आपसे बेहतर दुनिया छप जाए अपनी तलाश में, वो अपने जो सिलसिले हैं उससे पूछे। मगर आपके लिए मैं ये बात कहूं कि आप तो एक हदीस के दिलदादा हैं ना, आप तो एक हदीस मानते हैं कि पैगंबर ने फरमाया फातिमा अंते उम्म अबीहा, फातिमा तुम अपने बाप की मां हो। कौन सी बात है? आपने कभी सुना है कि कोई बाप अपने बेटे को कहे? मगर ये फातिमा को मां का दर्जा क्यों दिया जा रहा है? ये पैगंबर की हदीस नहीं है, ये बातिल मुआल्लिम के मुंह पर तमाचा है कि तस्दीर आमिना थी जो फातिमा ने ढूंढी जा रही है। तस्दीर आमिना थी जो फातिमा में तलाश की जा रही है। एक सारा ये हकीकत है कि आप अंदाजा लगाइए कि पैगंबर की हदीस है। पैगंबर फरमाते हैं कि फातिमा तुमने अपने बाप की मां। मतलब क्या कि क्यों ऐसा हो रहा? अभी कोई अगर इलेक्शन का दौरा था, कोई भी अगर नॉमिनेट चेहरा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा वरना पार्टी में समझ एक सलाम कोई भी एक चेहरा आप चुन लें। आप बताइए कि वो जो मुख्यमंत्री का इलेक्शन लड़ रहे थे अफराद, उनका फैमिली बैकग्राउंड आप किसी के भाई को जानते हैं, किसी के माँ बाप को जानते हैं, किसी की माँ को जानते हैं, किसी के सिलसिले को जानते हैं। क्यों? इसीलिए जब आदमी आगे बढ़ता है तो उसका फैमिली बैकग्राउंड भी खुलता चला जाता है, ज़माने पर आया होता जाता है। ऐसा क्या हुआ कि दूध पिलाने वाली का तो गिराफ बढ़ा दिया गया और आपको कहीं तारीफ के कोने में उनकी जो फजीलतों के सिलसिले थे उसको समेट दिया। ये क्यों? असल जानते हैं इसमें साजिश है। मुझे उनकी शख्सियत से इनकार नहीं है, वो होगी कोई, मुझे उससे बहस नहीं है। मगर मैं आपसे पूछता हूं, एक सवाल देता हूं इस मजलिस में, जब वो दूध पिला रही थी उनका कंडीशन ऑफ ईमान क्या था? जब वो दूध पिला रही थी क्या वो इस्लामी नहीं आया था? तो ईमान की तो वैसे नहीं थी। बहुत अच्छी बात। जब इस्लामी नहीं आया, अच्छा तो जब इस्लाम आया तब तो वो चली गई थी। अजब मिल्लत है। 2 साल शरीयत के कानून के मुताबिक इस तरह से फिगर जो है अभी सब में से निकल गया, मगर ये रहे 6 महीने से लेकर के वो 2 साल या 2 साल 6 महीना 6 माह
हमारी इस तरह की मुद्दत चली, अपने एग्जैक्ट फिगर जो है वो इस वक्त अल्लाह ने किया ज़हन से। तो लेकिन है ना, तो जो इस पीरियड में दूध पिलाया जाए वो सिलसिला, वाह क्या बात है मुसलमान के मिजाज और मीज़ान की, जो शॉर्ट टाइम में दूध पिला के अपने सेहरा में चली जाए, जो सेहरा में चली जाए और तारीख के दलदल में खो जाए, उसे खींच खींच के मुसलमान ला के शुक्रिया अदा कर रहा है। और जो बिस्तर रिसालत का औलाद सुला के बचपन से जवान कर ले जाए, उसे काफिर का एहसास दिया जा रहा है। अजीजों, इसका मतलब ये है कि पूरे सिलसिले में एक बात समझ में आई, ये जिद्दी उस दौर के मौलवी को कि किसी का गिराफ अगर बढ़ाना है तो पैगंबर का गिराफ कम करना पड़ेगा। एक सलाम होते वाकई दुनिया, और मैं ये बात कहूँ कि मैं पैगंबर का कसीदा नहीं पढ़ा, मैं तो जो समझ पाया हूँ वो आपके हुजूर पेश करूँ। इस घराने के अली की बात जानते हैं क्या? देखिए, मैं वाकई मैंने जो कहा ना, मजलिसों से मिलता मांगने का सलीका होना चाहिए। मैं ये जुमला उठाता हूँ जिसको आप जो जिस सिंह का है सामान्य से सुनना चला है, और ऐसा सोचिएगा, सुनिए, बात को खत्म करना भी है इसी बात ही समझा। जब अली का तस्करा कर दिया तो हो ही नहीं सकता, जब पैगंबर का तस्करा कर दिया तो हो ही नहीं सकता कि अली का नाम। आप अभी नारा लगा था, नारा हैदरी, ठीक है, नारा हैदरी लगा था ना, यानी आप समझ रहे हैं क्या किया है आपने? जिस रहबर को आप मानते हैं उस रहबर का नारा लगा के पूरे मजमे में वर्ष पैदा वर्ष, तो फिर आप नारा लगाएं और उधर से कोई सिलसिला ना हो। जुमला कहूं, अली ने भी आपको जब तक जिंदा रहेंगे कभी रहबरियत के उन्मान से शर्मिंदा होने नहीं दिया। एक छोटी सी बात उदाहरण हो, ऐसा चुना जाए रहबरियत के उन्मान से कि जिस रहबर का तुम नारा लगा रहे हो ना, अली ये मतलब नारा है करी, सारा मजमा हाथ उठा उठा कहता है हम भी हैं अली वाले, हम भी हैं अली वाले, हम भी यहाँ अली वाले। तो अली ने भी आपको 1400 वर्ष पहले ये जज्बे की कदर करते हुए कभी शर्मिंदा होने का मौका नहीं दिया। क्या किया अली ने? क्या किया अली ने? तो आपने कातिल से अपने बारे में पूछ लिया। बच्चे जो टीनेज के हैं, छोटे हैं, हमसे वो जरा सा मुतवज्जे हो जाए, बुजुर्गों की सरपरस्ती है, मैं ये बात कह दूं। अली का एक जुमला पढ़ना है मुझे, उसको जोर से बोले, कसम है काबे के रब की, अली कामयाब हो गया। ये अधूरा जुमला, इसकी तकमील तो थोड़ी देर बाद हुई। खैबर उठाने वाले, खंदक को फतह करने वाले, मरबू अंदर को खत्म करने वाले, बिस्तर रिसालत पसों के नबूवत की जान बचाने वाले कभी नहीं कसीदा ये पढ़ा, मगर एक ही मिसरा पढ़ा था, ऐसा लगा जैसे एक मिसरा, और अब कंप्लीट कब हुआ? फौरन थोड़ी देर बाद, जब सर पर ज़रबत लगी ना, अली के सर पर ज़रबत लगी, तो अब मसाइल नहीं है, फज़ाइल की बात है। अली के सर पर ज़रबत लगी, वो भागा, सीन देखिएगा, मंजर मुलाहिजा कीजिएगा, वो भागा, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम भागा। अब तो यानी लोग दौड़े, दो तरह के लोग, एक वो जो अली को अमीर अल-मोमिनीन जानते थे, और एक वो कि जो अली को खलीफतुल मुस्लिमीन जानते थे। दो तरह की पार्टी दौड़ी, एक अली को जो अमीर अल-मोमिनीन जानते
अरबों के पेट यहाँ तक सेहरी से भरे हुए थे। अरबों के पेट यहाँ तक सेहरी से भरे हुए थे। रमजान का महीना था, सेहरी खाई थी। अभी हो सकता है कि बास भी बेकार हुई। तो अब ऐसा पूरा कूफा, तो कुछ लोग इस पोजीशन में थे कि अभी आज़ान होगी तब जाएंगे, कुछ लोग इस सीन में थे कि यार सेहरी हो गई है अब चलें। वो सेहरी का एक कानून जो है आप मुलाहिजा करेंगे। एक बार वैशाली ट्रेन से हम जा रहे थे दिल्ली, वहाँ क़याम था, तो सुबह का वक्त हुआ, सेहरी का सेहरी जो भी मेरे पास मैसर था मैंने खा लिया। सामने मिंबर पर ये किबला बैठे हुए थे हजरत, तो वो खाए जा रहे, थोड़ा वक्फा गुजरा, अब मेरी बेचैनी भी बढ़ी। उसी मतलब जो है वो माहौल में देख रहा था, खाए जा रहे, मैंने कहा सेहरी का वक्त खत्म हो गया। आपको पता है, कहले हुजूर हमारी एक बात सुन लीजिए, हमारे यहाँ लिखा है साफ साफ कि जब तक आज़ान न सुनाई दे तो खुदा की कसम यही लिखा है, जब तक वक्त आज़ान और आज़ान न सुनाई दे आप सेहरी कर सकते। तो वो अपने उसमें थे, वो करेगा बंदे का हुजूर से ट्रेन 110 की रफ्तार से चल रही है, अलीगढ़ में क्रॉस हो रहा है, यहाँ तो आज़ान ट्रेन की सीटी नहीं सुनाई देगी। तो अब जाहिर सी बात है, तो जो अमीरुल मोमिनीन के अलावा खलीफतुल मुस्लिमीन मानने वाला सिलसिला था, तो वो चल रहा। कुछ लोग ये थे कि अब जाएंगे, कुछ लोग ये थे कि चलो भाई चला जाए, सेहरी तमाम हो गई, कुछ लोग ये थे अभी सेहरी नहीं तमाम हुई है। मगर इस बीच में एक जो जिसके रास्ते पर पड़ता था मकान, वो चिल्लाने की आवाज सुना, पकड़ो, सब आदमी को तवज्जो है, पूरा कूफा जाग रहा है, तो सब दरवाजा खोल के जब वो पकड़ के आया ना, आगे जाके नहीं तो पकड़ लिया गया, तो वो जब पकड़ लिया गया तो अब चला, तो पीछे पूरा कूफा चला। तो अब तक जो नहीं आए थे मस्जिद में, सबसे बुरा इंसान जो तुम्हारा कातिल, तो वो तो बुरा भाई 200%। मगर अली अगर पूछे तो झुल्ला कर कहाँ थे, तो आप बताइए नारे हैदरी लगाने वाले कहाँ जाते, किस अदालत में मुकदमा है? अबे आप नाम से ये तो सुनते चले आए हैं, जो झूठी बात है, जो झूठी कवाली है कि आदमी आता है वो कहता है कि खाली घोड़े नबूवत चूमने के लिए उसने अपना ताना माना मुंडिया ने घोड़े आए और उनका उतारा गया ना, मैं नहीं मानता। और अगर आपने कहीं देखा है सनद किताब में तो मुझे दिखा दीजिए, मेरे बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ। कोई नहीं आया था, जनाजा उठाने तो आए नहीं, घोड़े नबूवत चूमने आए। बिल्कुल झूठ, खाली कवाली बनाने के। ये तो कभी इधर जा रही तो इसकी नोक इधर सीधी कर लो, कभी इधर आप गुलाबी से क्यों? इसलिए क्योंकि इनको सिर्फ इसी में। तो अब अली ने क्या किया? अली ने कहा कि मैं तारीख के दलदल में फना नहीं होने दूंगा, इसको लेके जाऊंगा कयामत तक और अपने चाहने वालों का सीना इफ्तिखार से दुनिया के सामने पेश न करूं। अब क्या किया अली ने पूछा क्या मैं तेरा बुरा ईमान था? मैं कहूंगा मौला क्यों पूछ रहे हैं? कहा
بتا دیا کہ دشمنی علی کا ٹھکانا لاکھ واٹس ایپ پر کلپ بنا بنا کے ڈالتے رہیے مگر جب تک عمل میں محبت علی ظاہر نہیں ہوگی تو یہ علی کے دشمن نے بھی ہے عزیزوں واقعاً اس وادی میں سمجھ میں قدم بڑھائیے تو واقعاً کچھ ملتا کہ علی علیہ السلام افتخار پہنچایا کہ کبھی میرے سلسلے سے تمہیں شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا 63 سال کی بےتاب زندگی ہے اور اب عاقب شاہ کے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا اب یہاں تک پہنچ گئے تو اب پھر چیپٹر کلوز ہوا بس یہی ہوا کہ علی کی دشمنی کی بھرپائی ابو طالب سے نکال ابو طالب سے یہ کافی اچھا بھائی نئے لڑکے جو اسلام میں ابھی آئے ہیں ابھی جو اسلام آنے کے بعد پیغمبر لے جانے کے بعد انہیں کیا معلوم ابو طالب کا اور وہ لکھتے ایک لائن کو کلمہ نہیں پڑھ پایا آپ نے جو پڑھا اسے سمجھا دیا ہے جو ان کے لیے آپ کہہ رہے وہ نہیں پڑھ پائے تھے اور فاطمہ کی دشمنی حضرت خدیجہ سے نکالی حضرت خدیجہ سے بس اب یہ پیغمبر کے نام سے شروع کیا تھا تو پیغمبر کی زوجہ کو ختم کر خدیجہ کون جانتے ہیں جس نے زیادہ لے کے معاملے کو حل کیا اور کام میں اتنی کارے سے آپ کو اتنے کام کیجئے تو کسی اللہ والے سے اس کو بتائیے کہ بھئی یہ کام ہو گیا تو وہ کہتا اللہ آپ کے رزق میں برکت یہی ہوتا ہے نا یہی دو دعا کے جملے ہوتے ہیں اللہ آپ کے رزق میں برکت دے اب طے کرو کہ خدیجہ کے نیت میں کتنا عروج تھا اور للہیت پوشیدہ تھی عمل میں جب پروردگار نے برکت عطا نہیں کیا خدیجہ کے مال کو اپنا دیکھیں 3 دور گزرا کر بات پہنچ جائے تو 3 دور ہے مگر پروردگار کا انتخاب ہو ایسا کیجیے گا جب پیغمبر کو ضرورت تھی پیغمبر کہیے یا اسلام کہیے کہ جب اسلام کو ضرورت تھی تو پروردگار نے پورے قرآن پر تلاشا کہ کوئی میرے نبی کا محسن کوئی میرے اسلام کا مددگار مل جائے تو پروردگار نے پورے قرآن سے مردوں میں ابو طالب عورتوں میں خدیجہ مردوں میں ابو طالب عورتوں میں خدیجہ اور جب کہ اسلام نقطۂ عروج پر پہنچا اتنا کہ ستارہ کے ہوئی تب بھی اسی گھرانے کے لوگ نظر آئے ابو طالب کا بیٹا علی دکھائی دیا خدیجہ کی بیٹی سارہ دکھائی دی اور یہی اسلام پھر جب خبر میں پھنسا تو علی کا بیٹا حسین دکھائی دیا فاطمہ کی بیٹی زینب بات کو تمام میرے خاندان کے بزرگ کا انتقال اللہ غریب کے رحمت کرے میں آتا تھا یہاں مجلسیں پڑھنے میں آتا تھا یہاں جو ہے وہ مجلسوں کا سلسلہ ہوتا تھا جہاں تو مجلس کے بعد میں ان سے بڑے ادب سے پوچھتا تھا کہ کہاں پر کیا سلسلہ شروع کیا کہاں کیا ہونا چاہیے چونکہ میرے بچوں میرے جوان ایک بات آپ سے کہہ دوں کہ فرش اعظم پر سب سے کہ قدر کرو اپنے بزرگوں کی یہ سب سے بڑا سرمایہ عزیزوں آج بھی میں اس بنا میں نا اگر آپ کس سے میرے خاندان کے بزرگ ایک اچھے اور سچے انسان کا اس دنیا سے گزر خدا بری کا رحمت اور جب واقع ہماری مجلس پر اس کی پڑھنے کا جو ثواب میں نے ان بزرگوار کو دیا کروں اور واقعہ رب العزت میں دعا ہے کہ تمامی عزادات جو اس دنیا سے گزر ان کو
जवार इमाम हुसैन ने जगह इनाम और जो बुजुर्गान मौजूद हैं उनको सेहत सलामती अता करे और जो जवान है परवरदिगार उनके कदमों में कामयाबी बना के रखे। और सबसे बड़ी बात, 2 महीना 8 दिन की आज़ादारी में गुजार के बैठे ना तो 9 रबीउल अव्वल के बाद हम शोक बढ़ा देते हैं, शोक बढ़ा देते हैं अपनी खुशी के लिए। और मौला इमाम सज्जाद के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट की खातिर हम जश्न बर्पा करते हैं, लिबास सुर्ख का रास्ता करते हैं, अपने यहाँ तकारीब में शरीक होते हैं दूसरे के यहाँ। अगर कोई सज्जाद से पूछे कि मदीने में कैफियत क्या थी, क्या सज्जाद का शोक बढ़ गया? 9 रबीउल अव्वल से हमने जश्न मनाना शुरू किया ना, आज आखिर रबीउल अव्वल की तारीखों में हम बैठे हैं। क्या ज़ख्मे ज़ैनब हर गया? क्या मरहम मिल गया? ना, सज्जाद अभी भी ज़ैनब अभी भी मगर बातें ऐसा करबला वालों का मसला है, करबला वालों का मसला है। इमाम सज्जाद ने कभी नहीं कहा कि मेरे हाथों में हथकड़ी पहनाई गई जो हड्डियों तक पहुंच गई। इमाम सज्जाद ने कभी नहीं कहा कि मेरे गले में जो तौक बनाया गया था जब उसे लोहार ने जुदा करना चाहा तो बेहोश हो गया और वो चीख के जब उसे नशात से अफाका हुआ तो वो कहता है कि मैं हैरत करता हूँ कि कैसे ये इंसान जिंदा गले में खाता तौक, कैसे ये इंसान जिंदा। अच्छा उसके बाद ज़ैनब भी तड़पती रही मगर सब यही बार बार कह रहे थे। सज्जाद कहते थे हाय मेरा भाई प्यासा मारा गया, प्यासा मारा गया, प्यासा मारा गया, मेरा बाबा प्यासा मारा गया। आपने रवायत सुन रखी होगी जब कोई कसाब अपने जानवर को लेके जाता था, जब कोई कसाब अपने जानवर को लेके जाता था इमाम सज्जाद कहते थे भाई, और वो शर्मिंदगी से सर झुका देता था। करबला का वाक़या आम हो चुका था, वो शर्मिंदगी से सर झुका देता था। इमाम सज्जाद उस तक जाते थे और वो उसकी हिम्मत जवाब दे जाती थी कि क्या कहूँ। पर इमाम सज्जाद उस जानवर की तरफ देख के कहते थे भाई मुझे तेरे पेशे का और तेरे कस्बे माश का इल्म, अगर एक बात बता तो सज्जाद उस जानवर को पानी पिला दिया वो सर झुका के कहता था जी बच्चे से कसाब कहता था कि हाँ मैंने जानवर को पानी पिला दिया। भाई इमाम सज्जाद मदीने का मौका दे रहे थे ना 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 जानवर को भी पानी पिला के सेवा किया जाता मगर हाय मेरा बाबा, हाय मेरा बाबा, हाय मेरा बाबा। कहूँ बताऊँ हुसैन की प्यास, सलाम करो अकबर का मातम करने वालों, सलाम करो अकबर का जनाजा और ताबूत उठाने वालों कि तुम्हें अकबर ने हुसैन की प्यास की एक दिखा दिया, एक झलक बता दिया मगर हुसैन कब से प्यासे थे, हुसैन कब से प्यासे थे ये कोई नहीं जानता। अजीजों सकीना के रुखसत आखिर पर एक जुमला कहा है, क्या कहा था? जब हुसैन मक्तल में जाने को हुए ना सकीना घोड़ों की सूंडों से बैन कर रही थी। एक मर्तबा बाप थे बेटी को गले से लगाया मेरी बच्ची मुझे जाने दो। बेटी ने भी बाप से कहा बाबा मैं आपको नहीं रोकूंगा मगर बाबा बेटी ना एक बार मुझे सीने से लगा लो, एक बार मुझे सीने से लगा लो। अब क्या था हुसैन चलती हुई जमीन पर दोसानू होकर बैठे, हुसैन दोसानू होकर बैठे, सकीना को हाथ बढ़ाया आओ मेरी बच्ची ने कलेजे से लगा दोनों हाथों से सकीना को सीने से समेट लिया। अब क्या था सकीना को बाप का सीना मिला, आंखों को बंद कर लिया, लम्बा
परवरदिगार आसमान को सब्र अता फरमा और ऐ मेरे खालिक तुझसे भीख मांगते हैं। परवरदिगार पैगंबर ने तेरे हबीब ने इरशाद फरमाया कि कबूलियत दुआ का बेहतरीन वक्त नमाज वक्त आज़ान दुआ करो। परवरदिगार तुझसे भीख मांगो, हमारी ज़बान इस काबिल नहीं मगर तुझे अली व बतूल का वास्ता दे के भीख मांगते हैं। खालिक हम सब की आज़ादारी को कबूल फरमा, जज्बे आज़ादारी में इज़ाफ़ा फरमा। परवरदिगार हमारा मातम, हमारी मजलिसें, हमारे सोज़ो सलाम, हमारे मसीह व कलाम, हमारी खिदमत अज़ा, शिरकत अज़ा, जज्बे अज़ा अगर तेरी बारगाह में काबिल कबूल है, परवरदिगार हम सबको करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार हमारी इबादतें, हमारे सजदे, हमारी दुआएं, हमारी तस्बीह, हमारे ज़िक्र, हमारे क़याम, हमारे कुनूत अगर तेरी बारगाह में काबिल कबूल है, परवरदिगार हम सबको हज की सआदत नसीब फरमा। परवरदिगार जो अज़ादार इस दुनिया से गुजर गए उनको जवारे रहमत में जगह इनायत फरमा। जो बुजुर्गान हैं उनको सेहत और सलामती अता फरमा। हमारे जवानों को कामयाबी और कामरानी अता फरमा। उलमाए पाक की हिफाजत फरमा, मुक़द्दस मकामात की हिफाजत फरमा। परवरदिगार बेहतरीन अफजल और आला और फस्ल है कि इमाम ज़माना की ज़रूरत में ताजील फरमा और हम सबको उनके अमान और अंसार को शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़ार से गुज़ारिश है रसूल अल्हम्द और तीन मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के मरहूम महफूज सैयद साबिर हुसैन इब्न अमीर नीरज की रूह को इरसाल करते हैं। सत्य मोहम्मद और आप अस्सलाम वालेकुम